تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا. دھنیہ واد میرے دوستوں. تجھے یاد نہ میری آئی کسی سے اب کیا کہنا. دراز ماند قد ستون کے. شیئرنگ چل رہی ہے شیئرنگ چل رہی ہے. آپ کا کیا کتنی اٹیمپٹ میں ہوا ہے تو پلیز بتائیے گا. اچھا میں نے ویسے کوالیفائنگ اٹیمپٹ دی ہوئی ہے جس کا رزلٹ ابھی آنا باقی ہے میرے دوستوں, اور انشاءاللہ اپریل کے لاسٹ میں اس کا رزلٹ فائنلائز ہوگا. اور دوسرا یہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے آپ سے ہے آپ بتائیں کب آؤ گے آپ. اگر ملنے کے لیے لوکیشن تو آبویسلی میں بتا نہیں سکتا, تو آپ اپنی لوکیشن بتا دو میں پھر آ جاتا ہوں آپ کے پاس. یا پھر دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنا جلدی جلدی کیف کرو اور جس فارم میں میں ہوں اسی فارم میں آؤ, انٹرویو دو, انٹرویو کریک کرو, اس کے بعد میرے ساتھ جونیئر بن کے کام کرو. دھنیہ واد میرے دوست. اور بھائی آپ کو فرم کی طرف سے لیپ ٹاپ دیا جاتا ہے اور ورک آر یو یوزنگ یور آن. ابھی تو ہم فی الحال اپنا یوز کر رہے ہیں, لیکن ایک دن میں ہمیں وہ سسٹم جو ہے کہ بلٹ سسٹم لگا کے دے دیں گے. چلے یار ایک میرا کمنٹ آیا تھا کہ بھائی اسٹارٹ میں شریف تھے اور پتہ نہیں اب بھائی کو عشق کا روگ لگ گیا ہے. صحیح تو نہیں بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ تو بس مذاق کی میرے کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے, تو کوئی روگ نہیں لگا ہوا ہے. ہمیں آپ نے مس گائڈ نہ کرے گا اس کو. اور تو نے پھر کیوں کہا دو چیزیں بڑی مشکل سے ملتی ہیں, ایک پسندیدہ کریئر. سوچ رہا تھا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی مشکل سے ملتی ہیں. کون سی دو چیزیں مشکل سے ملتی ہیں؟ پہلی تو اپنا پسندیدہ کریئر, ٹھیک ہے, جس میں آپ ایکسیڈ کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری محبت. یہ دو چیزیں نا بہت مشکل سے ملتی ہیں اور اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے, خجل خوار ہونا پڑتا ہے کیونکہ اوورآل سوسائٹی کو دیکھتے ہوئے. اچھا تو بڑا سوسائٹی نو ویک لیتا. اچھا تو نیکسٹ کوسچن یہ ہے کہ ہاں جلدی بول, اونچا بول. آپ کو یوٹیوب کا آئیڈیا کیسے اور آپ یوٹیوب کو اسٹڈی کے ساتھ کس طرح سے مینیج کر رہے ہیں؟ اچھا ایک انڈین موٹیویشن اسپیکر تھا, سوہر وردی نام, پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. ہاں اس طرح تو جی تھوڑا گڈ لکنگ بھی ہے. تو اس کی میں ویڈیوز دیکھتا تھا. اس نے ایک دفعہ ویڈیو میں بولا کہ یار ویڈیو بنانے میں آپ کا کتنا ہی ٹائم لگ جائے گا, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹے. تو اس میں آپ کی کون سی انویسٹمنٹ جا رہی ہے, موبائل آپ کے پاس ہے, آواز آپ کے پاس ہے, تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. میں نے اسی کی باتوں میں آ کے کہہ لو موٹیویشن میں آ کے ایک ویڈیو سٹارٹ کر دی. مطلب آئی فیل آئی کوئٹ ایم ڈی کیٹ, یہ غالباً میں نے کوئی 8 سے 10 دفعہ ری شوٹ کی تھی کیونکہ میں غلطیاں کر رہا تھا, بار بار بولتے ہیں نا. ایک جو اے سی سی والا بھائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں آرٹیکلس آسانی سے مل جاتے ہیں کہ ہمیں بھی تھوڑا بہت ذلیل ہونا پڑتا ہے. یار آسانی سے تو کچھ بھی نہیں ملتا, آسانی سے زہر بھی نہیں ملتا. آبویسلی تھوڑا بہت ذلیل تو ہونا ہی پڑے گا, لیکن تھوڑی سی محنت مشقت کرنے کے بعد نا مل جاتی ہیں آرٹیکلس. اور آپ کا جو ایس سی کا پورٹل ہے وہاں پہ امپلائر پورٹل ایک ہوتا ہے, اس پہ جب آپ کلک کرتے ہو نا تو پھر آپ وہاں جا کے ڈفرینٹ فارمز میں اپلائی کرتے ہوتے ہو, اور جو بھی آپ ایسی فارم ہے جہاں پہ جس کے کرائٹیریا پہ آپ پورا اتر رہے ہو تو اس میں آپ کی انڈکشن ہو سکتی ہے. تو یس نا یار ایک عشق کے حوالے سے میسیج آیا ہے, کمنٹ کا ہے کہ کہہ رہا ہے کہ بھائی صحیح کہہ رہے ہیں کہ نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے اور کسی کسی کی بس کی بات ہوتی ہے, یار کوئی یہ نہیں کر سکتا. یہ کمنٹ کس کا ہے؟ یہ یار ہے کوئی میما خالد اس طرح کر کے ہے. اچھا بالکل صحیح بات ہے, بالکل صحیح بات نہیں ہے. نو کمنٹس. بھائی کوئی بحث نہیں. اچھا آگے یہ کہ بھائی اسٹائپنڈ سے گزارا ہو جاتا ہے آپ کا, یا پیرنٹس سے پاکٹ منی دینی پڑتی ہے؟ ابھی اسٹائپنڈ تو نہیں دے رہے, ہمیں اسٹائپنڈ دیں گے 3 مہینے کے بعد. ٹھیک ہے 3 مہینے کے بعد ہمیں کمولیٹو اسٹائپنڈ ملے گا 3 مہینے کا اکٹھا, اور اس کے بعد پھر پر منتھ کی بیسس کے اوپر دیں گے. اور یہ جو اسٹائپنڈ دے رہے ہوتے ہیں آئی کیپ سے کم ہوتا ہے, اور آئی کیپ کا جو اسٹرکچرڈ اسٹائپنڈ ہوتا ہے نا اس سے گزارا ہو جاتا ہے نا, ہاسٹل کا پر منتھ آپ نکال سکتے ہو.
अच्छा तो एक ये कमेंट आया था कि ये मैं रिप्लाई करूँगा कि फम में स्मोकिंग का लाया भाई हम तुसी करो अपना हुक्का भी ला के आ सकते हैं कोई टेंशन नहीं है स्मोकिंग क्या भाई, आप शराब यार नोशी भी आप कर सकते हो। प्रोफेशनल लोग हैं यार किस तरह के कमेंट कर रहे हो स्मोकिंग वगैरह भाई स्मोकिंग के बारे से पूछ रहा था यार वो बताया ना इसे तो स्मोकिंग भाई मैं कह रहा हूँ स्मोकिंग क्या, ये शराब नोशी भी कर सकते हैं, अल्कोहल कंजप्शन भी कर सकते, कोई इशू नहीं है यहाँ पे, कोई रोक टोक नहीं है। यार भाई मजाक कर रहा है अगर भाई की बातों को सीरियस ना ले जाए नहीं सीरियस लेना है बिल्कुल इसको। सीरियस बिल्कुल नहीं लेना आप लोगों ने भाई मजाक कर रहा है। अच्छा तो डू CCA स्टूडेंट ACCA स्टूडेंट्स आल्सो गेट्स इन अ बिग टाइम फर्म्स ऑब्वियसली इवन जो PwC है ना, PwC और EY, नहीं डिलॉयट नहीं, EY PMG स्पेशली ये दोनों PwC और EY ये हायर ACC वालों को करती हैं, क्योंकि उनके मोस्टली क्लाइंट्स इंटरनेशनल होते हैं। यस ACC वाले बिग 10 में बिग 4 में इनकी कनेक्शन हो जाती है। अच्छा यार एक और था कि भाई ये जो हमसे है वो मुल्तान से क्लियर हो सकता है Obviously हो सकता है। आई थिंक मुल्तान से जो है आप अपना CA कर सकते हो, वहाँ पे एक इदारा है स्कैन्स, ठीक है, तो वहाँ पे अपना जाके आप फिजिकल क्लास ले सकते हो। और अपना यार मेरे हिसाब से ना आपको बेस्ट टीचर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं बेस्ट टीचर से तो उनसे लाजमी पढ़ें, ज़रूरी नहीं कि आपने इंस्टीट्यूशन के अंदर ही रह कर पढ़ना है, कोई बंदा घर भी पढ़ सकता है अगर आपको कोई अच्छा टीचर लगता है ऑनलाइन क्लासेस। हाँ तो फिर आप लाहौर से क्लास ले सकते हो, कराची से क्लास ले सकते हो। जिस सर ARM है या फिर सर अदनान रऊफ है। मेरे दोस्तों बर्गर है या शब्बर बर्गर है भाई, इधर 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 करें ना बर्गर कौन है ये भाई कैसा था करेंगे देसी बॉय मेरे दोस्त। भाई मुझे पंजाबी आती भाई को पंजाबी नहीं आती। ये सानो पंजाबी 80 पंजाबी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये गल ना कर, ख्याल करना अपनी फितरी मौत ना मर जाना। हाँ कि पता नहीं कोई भाई था कि बहन थी वो ये बोल रही थी कि अब बोल रहा था जल्दी बोल ले, कि आप अपनी पर्सनल लाइफ की वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या अपनी राय दीजिए। पहले तो मुझे ये बता पर्सनल लाइफ इसमें कौन सी यार पर्सनल लाइफ ये तो प्रोफेशनल लाइफ हम अपनी थोड़ी बहुत अगर दिखा एक रहे हैं। वाक्य कोई हम ऐसा शेयर कर देते हैं ऑडियंस में एंगेज करने के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि इससे आपको वैसे स्मेल आ रही है वैसे। हाँ यार जल्दी की स्मेल आ रही है इनसे। मुझे भी आ रही है उसने रस कहा फिर ले कहा, पहले रस कहा फिर ले कहा, इस तरह से जालिम ने रसगुल्ले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन कल तो तूने पेड़े खाए थे रसगुल्ले की बढ़िया मुन्ना बड़ा आ जाना जो रही है ना यहाँ पे तेरी तस्वीर लगेगी। एक मिनट है कि नाइस पर आपने तो कहा था देख आपने पिंक शर्ट ली है ये तो और कोई कलर है तो मुझे कलर की शरीर ने पहचान नहीं है शायद लाइटिंग की वजह से ना, ये इसको बोलते हैं क्रीम कलर ना, क्या बोलते हैं बहरहाल मुझे लगा शायद ये लाइट पिंक है, इस वजह से मैंने लाइट पिंक बोल दिया। अच्छी लग रही है ना ऑफिस यार। मैंने मस्जिद में ना अभी एक बुज़ुर्ग देखा, सफ़ेद पोश, मतलब वो उसने वो पहने हुआ था, सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद आईब्रोज, एवरीथिंग ही वाज लुकिंग लाइक अ बुजुर्ग फरिश्ता। तो दुआ वगैरह करवा देनी थी। मैं वीडियो कैप्चर करने वाला था कि मुझे लगा कि कहीं वो माइंड ना कर जाए। बस ऑलमोस्ट 80 इयर्स का, तो वो आयतुल्लाह खमीनी उन्हीं की तरह। स्टडी अब्रॉड नहीं है ना फैम बॉय। अपनी बात कर मेरी बात ना करे। कल मम्मी डैडी बॉय मैं मम्मी डैडी हूँ, मैं तो भाई फुल ना मम्मी डैडी हूँ, मैं प्योर देसी हूँ, 2.5 किलो के हाथ मैंगो वाला, है। 2.5 किलो के हाथ वाला। और सेकेंडली कल जो फैम बॉय मिला था, फैम को पता है फैम इसमें फैमिली नेचर होती है, फैम से वो कल फैम बॉय हमें मिला था, मुझ सब कैसे बोल रहा था यार किसी के मजाक में यार मुझे शक में डाल रही हो यार। हाँ फिर मुझे आप शक में डाल रहे हो यार, यही कह रहा हूँ ना, मुझे शक में डाल रहे हो किसी के मजाक में यार मुझे शक में डाल रही हो यार। हाँ भाई मैंने मजाक किया। तो वो कैसे बोलता क्यों है? यार मुझे क्या पता उससे पूछ। मेरे दोस्तों मैं तो बन गया हूँ इस क्लास का बॉस, आप देख सकते हो। मेरे दोस्तों एक ज़बरदस्त मूड का खेल होने वाला है, फटते हुए निकलूँगा
और इस मौत के खेल में मेरी मौत भी हो सकती है। तू उसके जैसे लग रहा है बिल्कुल। आपको मेरे चैनल का कैसे पता चला था? मुझे ये इस बंदे ने ज़बरदस्ती इसने करवाया था सब्सक्राइब। मेरा फ़ोन पकड़ के इस बंदे ने क्लास में ज़बरदस्ती, सर पे हाथ रख, मुझे अभी इसका नाम भी नहीं पता था लेकिन फिर भी अपने सर पे हाथ रख और कसम खा। मेरे दोस्तों ये मेरे साथ था पीपी की क्लासेस के अंदर CFE में। ये मेरा दोस्त है इसलिए ऐसे बात कर रहा है। भाई सब्सक्राइबर होता अगर ये वाकई मेरा क्लोज करिए आप। करूँ तुझे एक्सपोज होते हैं प्याज से क्यों चिढ़ते हैं? किससे? प्याज से। प्याज से हाँ। चिढ़ते हैं? हाँ। हमें तो बहुत पसंद है भाई। अच्छा। भाई अराई गड्ढे खाने भाई। आजा आजा। चलें? नहीं एक लाहौर की फर्म से कॉल आई है। देखिए हम नॉन क्यू CR की नहीं जाना। ऑब्वियसली नहीं जाना। इधर ही सेटिस्फाइड हूँ मैं तो। दोस्तों है फवाद खान, वाह चौधरी। 8:30 तो फवाद खान है। मेरे दोस्तों मैं आ चुका हूँ वापस हॉस्टल, बहुत ज़्यादा थक हार कर। और आज मैंने परचेज रजिस्टर कैसे बनाया जाता है वो सीखा। एक सीनियर ने मेरी हेल्प की, शी इज़ एन अमेजिंग लेडी, लेकिन वो बहुत ही फास्ट बोलती हैं। मैंने उनसे 7 दफ़ा एक ही चीज़ पूछी कि इससे क्या मतलब है, इससे क्या मतलब है। ये उनका बड़ापन है कि वो बॉदर नहीं हुई और उन्होंने मुझे हर दफ़ा ही समझाया। परचेज रजिस्टर कैसे बनाया जाता है मैंने वो सीखा। लाइक स्टॉक स्टेटमेंट से डेटा सारा उठा करके परचेज रजिस्टर में डालना ताकि उसको डेटा के लिए मेंटेन किया जा सके। वापसी पर मैनेजर साहब ने पूछा कि यहाँ तुम किसी के घर रहते हो या हॉस्पिटल में रहते हो? मैंने कहा सर हॉस्पिटल नहीं हॉस्टल। उन्होंने कहा जी। तो खैर ये एक स्लिप ऑफ टंग हुई उनसे। बाकी ओवरऑल डे अच्छा रहा मेरे दोस्तों। मैंने 2024 के एंड पे गलबन PPE की क्लासेस की थी CFE से, और वहाँ पर मेरा एक दोस्त बना था, उसकी भी इंडक्शन इसी फर्म के अंदर हुई है। इंटरव्यू दे देने के बाद उसने जब मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो देखी तो उसने मुझे पूछा कि क्या तुम X फर्म में हो? तो मैंने कहा हाँ। उसने कहा मेरी कल वहाँ ज्वाइनिंग है। तो आज मेरे साथ था वो और उससे भी अच्छा दिन गुजरा। मैंने उसको समझाया भी जो मैंने सीखा। अच्छा एक बात मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू वाली वीडियो के अंदर मैंने एक बात डेलिबरेटली बिल्कुल एक्सप्रेसिवली बोली है कि मैं फर्म का नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता ड्यू टू प्राइवेसी। ठीक है, ऑब्वियसली लोकेशन शेयर नहीं की जा सकती। इसके बावजूद भी कुछ कमेंट्स हैं कि आपकी फर्म का नाम क्या है। इवन कुछ माशाल्लाह से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि व्हाट्सएप के ऊपर या इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछते हैं अच्छा तो फलां फर्म में जहाँ पे आप होते हैं वहाँ का स्टाइपेंड क्या है 3 महीने का, तो आपको कितना स्टाइपेंड देंगे। मतलब वो उल्टा मुझे घेरना चाहते हैं ताकि मैं उन्हें बताऊं कि हाँ मैं इसी फर्म के अंदर हूँ, ताकि मैं उन्हें तस्दीक कर दूँ। तो खैर मुझे पता है कि बहुत से लोग जानते हैं, उसके बावजूद भी मैं इसको ओपनली डिस्क्लोज नहीं करना चाहता। फर्म के पार्टनर से आज मैंने फिर मुलाकात करने की कोशिश की। मैंने रिसेप्शनिस्ट को बोला, लेकिन उसने कहा कि उनकी मीटिंग चल रही है जिसकी वजह से वो अंदर नहीं जा सकती, उनके ऑफिस में नहीं जा सकती, इसलिए बेहतर होगा कि मुझे कल जाना चाहिए। तो लेट्स सी मेरे दोस्तों, आया कि मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं डिपार्टमेंट रोटेशन में या फिर रिजेक्ट करते हैं। और आज मुझे लाहौर की एक नॉन QCR रेटेड जो फर्म होती है वहाँ से एक कॉल आई कि आपका फ्राइडे को हम इंटरव्यू शेड्यूल कर रहे हैं। तो
तो पहले मैं डबल माइंडेड हो गया कि मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए. ऑब्वियसली दिस फर्म जहाँ पे मैं अभी हूँ इंटर्नी के तौर पे, दिस फॉल्स अंडर बिग 10 कैटेगरी. तो अगर मैं वहाँ जाता हूँ, ज़ाहिर बात है वो QCR भी नहीं है. मतलब पहले होती है बिग 4, उसके बाद A कैटेगरी, फिर B कैटेगरी, फिर C कैटेगरी, फिर QCR और फिर नॉन QCR. मतलब जो आखिरी कैटेगरी होती है ना, तो ये उस कैटेगरी की फर्म थी. तो ज़ाहिर बात है आई एम नॉट गोइंग टू ज्वाइन इट. ऑब्वियसली मेरी जो प्रेफरेंस है ना वो यही है कि मैं लाहौर या इस्लामाबाद, ज़्यादा प्रेफरेंस ये है कि मेरा इस्लामाबाद किसी अगर फर्म में होता है तो डेफिनेटली आई विल जॉइन दैट फर्म. लेकिन अभी 3 महीने के लिए इंटर्नशिप मुझे करनी है. ये आज का एक थका दिन था मेरा दोस्तों, बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ. और इंशाल्लाह फिर किसी और वीडियो में बात होगी मेरे दोस्तों. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अल्लाह हाफ़िज़.